India's first Vande Bharat sleeper train is set to be inaugurated in the coming days. The price of Vande Bharat sleeper train tickets will be slightly higher than existing premium trains like the Rajdhani Express and will require passengers to shell out a minimum fare equivalent to what is charged for 400-kilometer distance. The Railway Board notified the fare structure on January 9, 2026. The passengers will be charged Rs 2.4 per kilometer for 3AC, Rs 3.1 per kilometer for 2AC and Rs 3.8 per kilometer first AC. The minimum fare for 400 kilometer distance is Rs 960 for 3AC, Rs 1240 for 2AC and Rs 1520 for 1AC, excluding the GST. Compared to the classic Delhi Howrah Rajdhani, which charges less per kilometer in every class, Vande Bharat Sleeper is pricier across the board. Rajdhani charges Rs 2.10 per kilometer for 3AC, Rs 2.85 for 2AC and Rs 3.53 for 1AC. That's 14% to 19% cheaper than the new sleeper train. So why the premium pricing? Well, the railway official said that the pricing reflects the train's superior speed, modern interiors, enhanced safety systems, and hotel-like onboard amenities. The train is expected to cut travel time by around 3 hours compared to existing express services. It can travel at 180 km per hour but will run at 130 km per hour on the Howrah-Guwahati route. The train comes with major booking changes. The Vande Bharat Sleeper Express will operate with only confirmed tickets with no provision for RAC, waitlisted or partially confirmed tickets. This eliminates the common practice of reservation against cancellation. All available berths will be opened from the first day of the advanced reservation period. From the 1000-kilometer Howrah-Guwahati route, passengers pay Rs 2,400 for 3AC versus Rs 1,410 for Saraighat Express. The no RAC policy ensures guaranteed berths but limits flexibility. The express train is expected to be inaugurated on January 17th by Prime Minister Narendra Modi. The 16-coach train includes 11 3AC coaches, 4 2AC coaches and 1 first AC coach with a total capacity of 823 passengers. The train features ergonomically designed cushioned berths, advanced suspension systems for improved ride comfort, noise reduction technology, automatic doors with vestibules, and a modern passenger information system. It's also equipped with a Kavach automatic train protection system and bio-vacuum toilets. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has underlined that there will be no dynamic fare with catering charges bundled into the ticket price for all classes. Passengers will enjoy region-specific culinary offerings with trains from Guwahati featuring authentic Assamese cuisine, while trains from Kolkata will serve traditional Bengali delicacies. The higher fares position Vande Bharat Sleeper as a premium alternative to both conventional trains and air travel. The railways have mandated digital payments only, including at ticket counters to streamline refunds. Only select quotas apply: ladies, senior citizens, persons with disabilities and duty pass holders. The fare structure balances modern amenities with accessibility, though it places the train among the country's most expensive regular passenger services. For travelers prioritizing speed, comfort and confirmed bookings, the premium may be worth it. अब ओवरनाइट जर्नी के लिए 1000 से 1200-1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए, जिसमें शाम को बैठ के अर्ली मॉर्निंग पहुंच सके, उस तरह की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर का डिजाइन किया गया है। इस डिजाइन में प्रैक्टिकली एक टोटली नए तरीके से डिजाइन किया गया है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम पूरी तरह से नया डिजाइन है। इसका जो सस्पेंशन सिस्टम यानी बोगी है वो पूरी तरह से नए डिजाइन है। इसके जो कोचेज हैं, कोच का डिजाइन भी एकदम नया है। ड्राइवर्स की कैबिन का डिजाइन एक अलग तरीके से एर्गोनॉमिक डिजाइन किया गया है। कोचेज के आपस में जो कपलर हैं वो नए डिजाइन के सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स लगाए गए हैं, जिससे कि चलने के टाइम में कोई झटका ना आए। हर चीज में पैसेंजर्स के कंफर्ट को, पैसेंजर्स की सेफ्टी को फोकस में रखते हुए डिजाइन किया गया है। सीसीटीवी कैमरास प्री फिटेड हैं, कवच प्री फिटेड हैं। जो ब्रेक सिस्टम है उसमें टोटल नई तरह से प्रोग्रामिंग की गई है। पैसेंजर्स के अंदर कंफर्ट के लिए सीट नए तरीके से डिजाइन की गई है। जो लैडर है चढ़ने का, उसका एर्गोनॉमिक डिजाइन किया गया है। और जब डिजाइन किया गया था तब करीब करीब कोई हैवी बिल्ट व्यक्ति हो, कोई शॉर्ट हाइट का हो, कोई लॉन्ग, कोई टॉल हो,
कोई लाइट हो, हर तरह के व्यक्ति को अंदर बैठा के चढ़ा के डिजाइन के टाइम में उसका प्रैक्टिकल फीडबैक लिया गया है। अंदर टॉयलेट्स का डिजाइन नए तरीके से किया गया, जैसे पानी का वेस्टेज कम से कम हो और साथ ही साथ पानी स्पिल होकर एरिया जो बाकी का फ्लोर है उस पर ना आए। पेंट्री एक नए डिजाइन का है, आप अंदर जाके देखेंगे पेंट्री नए डिजाइन का है। प्लस जो साथ में जो सर्विस करने वाले कर्मचारी होते हैं, क्लीनिंग के लिए हो, खाना सर्व करने के लिए हो, उन सब के लिए भी अलग से व्यवस्था इसमें ट्रेन में देखी गई है। उनके लिए अलग से बर्थ रखी गई है, अलग से व्यवस्था, उनके लिए एरिया डेजिग्नेट किया गया है। तो हर तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको इंस्पायर किया है कि मिडिल क्लास की सवारी बने रेलवे, लो इनकम फैमिलीज की सवारी बने रेलवे। वही ध्यान में रखते हुए फेयर भी बहुत रीजनेबल रखा गया है और जो इसका पहला सर्विस माननीय प्रधानमंत्री जी आरंभ करेंगे बहुत जल्दी, आने वाले कुछ ही दिनों में, वो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में पहली सर्विस चालू होगी। दोनों साइड से ट्रेन इवनिंग में चलेगी, अगले दिन मॉर्निंग में डेस्टिनेशन पहुंचाएगी, यानी कोलकाता से इवनिंग में चल के गुवाहाटी पहुंचना और दूसरी ट्रेन साइमल्टेनियसली गुवाहाटी से रवाना होकर सुबह कोलकाता पहुंचना। इस तरह की व्यवस्था की गई है। इस साल करीब 10 और ट्रेन बनेंगी, यानी टोटल 12 ट्रेन का इस साल का टारगेट है। तो 5 और पेयर्स इस तरह से जुड़ पाएंगे और उसके बाद में जैसे आपने वंदे भारत का देखा, आज 180 से करीब सर्विसेज हो चुकी हैं, वैसे ही इसका भी रैपिड रैंप अप होगा। बहुत ध्यान से हर चीज़ का डिज़ाइन किया गया है। आपने सस्पेंशन सिस्टम के डिज़ाइन के बारे में हाल ही में टेस्टिंग के वीडियोस देखे होंगे। टेस्टिंग के दौरान टीम ने 3 पानी के ग्लास रखे, उसके ऊपर एक और ग्लास रखा और वो स्टेबल रहा। तो ये डिज़ाइन में भारत के इंजीनियर्स की जो ताकत है वो इस डिज़ाइन से प्रूव होती है कि भाई सेमीकंडक्टर के 2 नैनोमीटर की चिप्स भी डिज़ाइन कर सकता है भारत का इंजीनियर, इस तरह की ट्रेन भी डिज़ाइन कर सकता है और स्पेसक्राफ्ट रॉकेट भी डिज़ाइन कर सकता है। ये भारत के इंजीनियर्स की डिज़ाइन की ताकत है और ये भारत के प्रधानमंत्री जी का हमारे टैलेंट में, देश के युवाओं में, देश के टैलेंटेड इंजीनियर्स में जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है, वो इसका आपके सामने एक एग्जाम्पल है। सर, जो आपने ट्रायल किया था और वो ग्लास में पानी रख के दिखाया, क्या बाकी रूट पे जो आप जहां नई वंदे भारत आप शुरू कर रहे हैं, क्या उनका ट्रैक उसी तरह का है? और उसी तरह ट्रैक बहुत देश में अपग्रेड हुए हैं। करीब 79% ऑफ द ट्रैक्स इन द एंटायर सिस्टम दे हैव बीन अपग्रेडेड। उनको चेंज करके नए ट्रैक लगाए जा चुके हैं। करीब हर साल 7000 किलोमीटर रेलवे में ट्रैक का अपग्रेडेशन चल रहा है, बहुत मैसिव अपग्रेडेशन चल रहा है। जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, ये जो आप OHE देखते हो, उसका भी अपग्रेडेशन चल रहा है। प्लेटफॉर्म्स और स्टेशंस का अपग्रेडेशन चल रहा है। सिग्नलिंग सिस्टम का अपग्रेडेशन चल रहा है। जो 60-70 वर्ष तक रेलवे को निग्लेक्ट किया था सरकारों ने, आज मोदी जी रेलवे पे एक बहुत विशेष फोकस देकर रेलवे को एक नई दिशा, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके कारण आज यात्रियों में एक नया अनुभव मिल रहा है।